السلام علیکم، میں ہوں صدف درانی۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل اور بر وقت معلومات کے لیے پریس کیجیے بیل آئیکن۔ پاکستان کی ہر بیماری کا علاج ووٹ کو عزت دو اس میں چھپا ہوا ہے، کیونکہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پھر جو لا کر ہمارے سروں پہ مسلط کیے جاتے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں لائق کون ہے، اس میں پھر ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ کون کتنا تابعدار ہے۔ لاہور میں پی ڈی ایم تحریک پر مشاورت کے لیے مسلم لیگ نون کی بڑی بیٹھک۔ مریم نواز کی حکومت پر تابڑ توڑ لفظی حملے، کہا پاکستان کی ہر بیماری کا علاج ووٹ کو عزت دو میں ہے۔ نواز شریف کا مقدمہ گلی گلی محلے محلے تک پہنچ گیا ہے۔ ہم فیصلہ کن جدوجہد میں داخل ہونے جا رہے ہیں، قربانی دینے کا وقت آیا تو عوام مجھے سب سے آگے کھڑا پائیں گے۔ تابع داروں کو لانے سے ملک میں مہنگائی اور لا قانونیت ہوتی ہے۔ جب آپ ڈھول بجائیں گے تو بشیر میمن کی گواہی کی آواز آئے گی۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے آج مفرور ہیں۔ عوام اپوزیشن کے بیانیے کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل، کہا کوئی مقدمہ ہو یہ سب حکومت پر ڈال دیتے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی کے خلاف بات کرنے پر بانی ایم کیو ایم پر پابندی لگ سکتی ہے تو نواز شریف پر کیوں نہیں؟ مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے کہا منی لانڈرنگ کا سوال کریں تو یہ مہنگائی کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ آج نواز شریف کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ وہ نااہل، جھوٹے، مفرور اور اشتہاری ہیں۔ ہماری کسی سے جنگ نہیں، عوام تکلیف میں ہے، آج وقت ہے ہم باہر نکلیں۔ شاہد خاقان عباسی کا پارٹی اجلاس سے خطاب، کہا توقع ہے کارکن پی ڈی ایم کے جلسوں کو کامیاب کرائیں گے۔ احسن اقبال بولے ملک آئین کے مطابق چلے گا تو ترقی کرے گا، ثابت ہوا یہ نااہل لوگوں پر مشتمل حکومت ہے۔ خواجہ آصف نے کہا نواز شریف کی کال پر 84 اراکین اسمبلی استعفیٰ دیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ سینٹ کے انتخابات کیسے ہوتے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں ووٹ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا، ان کی قیادت کو کیسز میں ریلیف نہیں ملے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بھی صاف صاف بتا دیا، کہتے ہیں رہی صحیح غیر متحدہ اپوزیشن کی سازشیں موجودہ حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پی ٹی آئی حکومت میں اپوزیشن کو این آر او نہیں ملے گا۔ نون اور شین کی غیر موجودگی میں میم لیگ سیاست کا بیڑا غرق کرنے میں آزاد ہے۔ مسلم لیگ نون کے لاہور جلسے میں 250 سے زائد افراد نہیں تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے عمران خان پر تنقیدی وار، کہا عمران خان کی حکومت مکمل طور پر ناکام ثابت ہو چکی، اب عوام نہیں بلکہ عمران خان کے گھبرانے کا وقت ہو چکا ہے۔ عوام دشمن حکومت کے پاس ماضی کی حکومتوں پر الزام دھرنے کے سوا بتانے کو کچھ بھی نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں ویڈیو لنک کے ذریعے اہم اجلاس، ورچوئل اجلاس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بیانیے کی تشہیر کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا بنڈل آئی لینڈ سے متعلقہ امور سندھ حکومت کے ساتھ مل کر طے کیے جائیں۔ ملاقات کے بعد گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر علی زیدی کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا وزیر اعظم کراچی کے جزائر پر 2 نئے شہر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ بنڈل آئی لینڈ ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں، جامع ماسٹر پلان کے تحت یہ شہر آباد کیے جا رہے ہیں۔ آئی لینڈ منصوبے سے 1.5 لاکھ نوکریوں کا اضافہ ہوگا۔ علی زیدی نے کہا یہ تاثر غلط ہے کہ سندھ پر کوئی قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ عمران اسماعیل اور علی زیدی اگر خود کو سندھ کا بیٹا سمجھتے تو جزائر کے صدارتی آرڈیننس کی حمایت نہ کرتے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ کا رد عمل، کہا پی ٹی آئی کی اولین کوشش ہوتی ہے کہ ملکی مفاد کے ہر معاملے کو متنازع بنا دے۔ جزائر والا معاملہ احسن طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا، مگر آرڈیننس کے اجرا سے پی ٹی آئی نے معاملہ متنازع کر دیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جلد عوام کو پی ٹی آئی سے چھٹکارا دلائے گی۔
नैब रावलपिंडी का नवाज शरीफ का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के लिए DG FIA को खत में कहा गया है कि नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का रिकॉर्ड इमिग्रेशन सिस्टम में शामिल किया जाए। FIA ज़राए के मुताबिक नैब रावलपिंडी का खत DG FIA को मौसूल हो गया। मुआशी सरगर्मियों का फरोग, कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी तरजीह है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की मजबूती के लिए इक्तिसादी इस्तेहकाम जरूरी है। हुकूमत ने इखराजात और मुल्की दरामदात में कमी की। मुआशी कमजोरियों के खारजा महाज पर असरात मुरतब होते हैं। के हवाले से अवाम ने एहतियात छोड़ दी। NCOC का गहरी इजहार तशवीश। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इजलास में कहा गया, सेहत की परवाह नहीं, हाथ मिलाना मामूल बन चुका है। समाजी फासले और नो मास्क नो सर्विस के असूलों पर अमल नहीं हो रहा। इजलास में रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स और इज्तिमात में वायरस के ज्यादा फैलाव के खतरात पर भी तशवीश जाहिर की गई। NCOC का तमाम फ़रीक़ैन से नई सूरत हाल पर फौरी मुशावरत का फैसला। मुल्क में कोरोना वबा ने मजीद 9 जानें ले लीं। अमवात की तादाद 6544 हो गई। 24 घंटे में 583 नए केसेस की तस्दीक। नैब जीरो करप्शन और 100% तरक्की पर भरपूर यकीन रखता है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास के दौरान गुफ्तगू, कहा नैब नए अज़्म के साथ बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। नैब अफसर बदउनवानी के खात्मे को कौमी फर्ज समझकर अदा कर रहे हैं। नैब मुल्क को करप्शन फ्री बनाने के लिए अपने मिशन की तकमील के लिए भरपूर मेहनत कर रहा है। आर्मी चीफ से ज़ल्मे खलीलजाद और अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के सरबराह की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल पर बातचीत। अफगान अमन अमल और पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट के अमूर भी ज़ेर गौर आए। अमरीकी वफ़द ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया की बहरिया के माबैन मुश्तरका बहरी मश्क। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी मश्क में पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार और जनूबी कोरिया के जहाज की शिरकत। मश्क का मकसद दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के माबैन ताल्लुकात और ऑपरेशंस को मजीद फरोग देना है। मुल्क भर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चिहलम मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। शहर शहर मातमी जुलूस मजालिस बरपा हुई। शबी अलमजुल जनाह के जुलूस निकाले गए। ज़ाकिरीन ने फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। कराची में मरकजी जुलूस, खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह और लाहौर का जुलूस करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पसीर हुआ। रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में भी जुलूस निकाले गए। जुलूस के रास्ते पर मोबाइल फ़ोन सर्विस और डबल सवारी पर पाबंदी रही। नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि कुर्बानी देने का वक्त आएगा, अवाम मुझे सबसे आगे खड़ा पाएंगे। मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए मजीद उन्होंने क्या कहा, बता रहे हैं नदीम चौधरी। मरियम नवाज ने अपने वालिद के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे पर हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि मुझे नवाज शरीफ ने कहा है कि कोई गिरफ्तार करने आए तो गिरफ्तारी देना। कैसा गद्दार है वो, जिसको जब पाकिस्तान मिला तो 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, पाकिस्तान को रोशनियां देकर चला गया। और आज भी उन्होंने जब आवाज दी है तो उन्होंने ये नहीं किया कि वो लंदन में बैठे, उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी निहत्ती बेटी को कारकुनों की सफ में पहले खड़ा किया। और जब कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो आप मरियम नवाज शरीफ को सबसे पहले सफ में खड़ा देखेंगे। मरियम नवाज ने एक बार फिर नैब और हुकूमत पर खूब तनकीद की। इमरान खान साहब की बहन, उनको तो कोई अदालत, कोई नैब बुलाने की जुर्रत नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान में जो महंगाई है, पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत है, पाकिस्तान के अंदर जो इंतकाम है,
पाकिस्तान के अंदर जो आईनी और जो शख्सी हकूक जिनके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल है जो कि सस्पेंड हुए हैं, फिर ये होता है। मरियम नवाज ने दावा किया कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हुकूमत मुखालिफ तहरीक पहले ही कामयाब हो चुकी है। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि आज नवाज शरीफ की कानूनी हैसियत ये है कि वो नाअहल, झूठे, मफरूर और इश्तिहारी हैं। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है, इस हकीकत के अलावा बाकी सब फसाने हैं। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बात करने पर अगर मुत्तहदा बानी पर पाबंदी लगी तो नवाज शरीफ पर क्यों नहीं। हुकूमती वजीर और मुशीरों ने एक बार फिर अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने अपने एक बयान में कहा है कि अफसोस अपोजिशन की सियासत चंद घरानों की गुलामी में फंसी हुई है। उनका कहना था कि आज नवाज शरीफ की कानूनी हैसियत ये है कि वो नाअहल, झूठे, मफरूर और इश्तिहारी हैं। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं, इस हकीकत के अलावा बाकी सब फसाना है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बात करने पर अगर मुत्तहदा बानी पर पाबंदी लगाई गई तो नवाज शरीफ पर क्यों नहीं। अगर नवाज शरीफ को इजाज़त देनी हो तो मुत्तहदा बानी पर पाबंदी का फिर कोई जवाब नहीं बचता। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून का सियासी करियर ख़त्म हो चुका है, इनकी क़यादत को केसेस में रिलीफ नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि अवाम और अदालतों की तरफ से मुस्तरद अपोजिशन को कोई NRO नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं कि वक्त आने पर हमारे अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे दिए तो फिर हम देखेंगे कि सेनेट के इंतखाबात कैसे होते हैं। पार्टी रहनुमाओं को हुकूमत मुखालिफ तहरीक और 16 अक्टूबर को गुजरावाला में PDM के जलसे की कामयाबी के लिए सर धड़ की बाजी लगाने की हिदायत कर दी गई। तफसील बता रहे हैं लाहौर से नदीम चौधरी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की अहम बैठक। पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अपने खिताब में हुकूमत पर खूब तनकीद की। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, बयानिया वाज़ेह है कि अवाम की अमानत वोट में खयानत नहीं होगी। ये इज्जत पाकिस्तान के अवाम की अमानत है। आज वक्त है कि हम बाहर निकलें, क्योंकि आज मुल्क मुश्किल में है, आज अवाम तकलीफ में है। हमने उनकी तकलीफ को दूर करना है। एहसन इकबाल कहने लगे कि अब मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना होगा। हमने पाकिस्तान को कायदे आज़म के ख्वाबों की ताबीर बनाना है। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब ये अवाम की मंशा और वोट की ताकत से चलेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में वोट की हुर्मत को पामाल किया गया। जो कुछ हुआ 2018 में, उसकी कीमत जो है पूरे 2 साल से सारी कौम जो है वो अदा कर रही है। ये 84 के 84 मेंबर जो है नवाज शरीफ की कॉल के ऊपर असेंबली से इस्तीफा देंगे और फिर हम देखेंगे कौन सेनेट के इलेक्शन कराता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा कि 70 सालों में इस कौम ने इतना नुकसान नहीं उठाया जितना गुज़िश्ता 2 साल में अवाम ने उठाया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।